Hello everyone. Uh, कैसे हैं सब लोग? I think everybody is preparing seriously. At least I hope everybody prepare seriously for the exam and don't waste a lot of time in watching many other things. Movies ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. Time is very precious and I feel you have got a golden opportunity to clear the exam, and if you put up enough discipline in the coming months, then I think this year will be yours. तो देख लेते हैं. एंड दिस वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन फॉर द लास्ट टू. हमने दो वीडियोस बनाया था रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स. दिस वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन फॉर दैट. इसमें टाइम इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉट एवर टाइम यू आर इन्वेस्टिंग इन दीज वीडियोज विल फेच यू एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस इन prelims. आई कैन से दिस गारंटीडली. एंड मेंस में तो बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा. इट विल हेल्प यू इन योर इकोनॉमी, इट विल हेल्प यू इन योर पॉलिटी, in writing good answers. It will also help you in your international relations. And more than that, understanding the government is the most important aspect. आप अब यूपीएससी भी तो गवर्नमेंट ही तो है, गवर्नमेंट के अंडर ही तो आता है. सो इवन इफ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द टॉप सर्विसेज ऑफ द कंट्री, ultimately you have to understand, you have to work in these schemes only. So चलिए शुरू कर देते. uh, all these slides, like we have said, they are taken up from the Transform India site. तो देख लेते हैं कि क्या क्या स्कीम्स है. टुडे वी आर कवरिंग ओनली द स्किल डेवलपमेंट. यूथ के लिए ज़्यादातर स्किल डेवलपमेंट्स क्या है, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है. एंड विल सी अ लॉट ऑफ लिटिल बिट अबाउट द साइंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो. ठीक है, देख लेते हैं जीएसएलवी, पीएसएलवी और सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं. सैटेलाइट्स का क्या क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है. चलिए चलिए शुरू कर देते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत. ठीक है. सो व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया. इतना याद रखिए कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है, इट encourages the young entrepreneurs. It creates a healthy environment to setting up of entrepreneurship in the country. आप ये देख सकते हैं 15,000 स्टार्टअप्स हैव रिकॉग्नाइज्ड सो फार. एंड रिलीफ दिया जाता है इनको, टैक्स रिलीफ भी मिलता है अंडर दिस स्कीम. एंड मुद्रा योजना ऑल्सो हेल्प्स दिस. मुद्रा योजना के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं. एंड मुद्रा के बारे में ये दिया था कि अराउंड 15 करोड़ मुद्रा लोन सैंक्शन सिंस अप्रैल 2015. So we'll see about Mudra also. But Startup India, don't get confused with Startup India and Stand Up India. Stand Up India is a different scheme. That is also for encouraging the entrepreneurship only, but that is a specific scheme for SC, ST and women. And this is for commonly, matlab, for everyone. The beneficiaries are different. You have to focus on these aspects. Nodal ministry kya hai, beneficiary kya hai, who are the target beneficiaries, all these things should be remembered. चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं. This is Ministry of Commerce and Industry is a nodal ministry under the Department of Promotion of Industry and Internet Trade. अब ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या होता है, मतलब ऑन ए होल यू हैव टू assess this. This is to promote robust startup ecosystem in India. As it is, यही sentences आप लिखेंगे आंसर्स में तो बहुत काम आएगा. But yeah, and this scheme subsumes, or you can say involves, many other ministries also. अकेले मिनिस्ट्री, ये तो नोडल मिनिस्ट्री तो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बट दिस स्कीम इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज ऑल्सो. सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, broadcast, railways, education. All these uh, uh, ministries are involved in setting up of startups. So this is all you need to know about Startup India. Nodal ministry ध्यान में रखिएगा. This is very important. Uh, and you can see policies. Central government का क्या policies है. Mainly women entrepreneurship पे focus है. And then we can see what startup policies in different states आप देख सकते हैं. बट इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में. स्टार्टअप इंडिया स्कीम जनरली encourages the young people to set up their own enterprises and generate employment.
in these terms you can see. ज़्यादातर नोडल मिनिस्ट्री का आप ध्यान में रखिए बस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि मुद्रा योजना के बारे में भी हम देख लेते हैं कि क्या है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। And the main target is microfinance and micro and small medium enterprises. The nodal department is also that thing only, Ministry of MSME. And ये क्या है मतलब एम्स प्रोवाइडिंग क्रेडिट, एक लोन फैसिलिटी को बहुत आसान तरीके से लोगों को पहुंचाना। एंड यू नो स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना या फिर स्टैंड अप इंडिया, ऑल दीज थिंग्स आर trying to encourage the entrepreneurship among the common people। मतलब एक कॉमन मैन को एक बिजनेस सेटअप करना बहुत बड़ा सपना होता है। मतलब दे वुडंट फाइंड एनफ रिसोर्सेस। मेन रिसोर्स क्या होता है बिजनेस में सेटिंग अप करने के लिए? इन्वेस्टमेंट ही होता है, और वो इन्वेस्टमेंट बहुत आसान से नहीं मिलता। दैट्स व्हाई यू नो ऑल दीज स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, कीपिंग इन व्यू ऑल दीज प्रैक्टिकल थिंग्स। चलिए इसमें क्या है, ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि 10 लाख का लोन आपको मिल सकता है। एंड अराउंड टू सेटिंग अप ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसमें कैटेगरी ऑफ लोन भी दिया हुआ है, शिशु, किशोर एंड तरुण। यू नो दीज कैटेगरीज, जस्ट रिमेंबर, कभी कभी ये आपको मेंस में काम आ ही जाएगा। बट यू नो ये कैटेगरी ज़्यादातर आपको ये मतलब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल यू जस्ट नो शिशु लोन्स मतलब अराउंड 50,000 रुपीज़ तक आपको लोन मिलेगा। किशोर लोन अराउंड 5 lakhs, तरुण लोन इज अराउंड 10 lakhs, ऐसे कैटेगरीज किया हुआ है। एंड दिस लोन, टू क्लेम दिस लोन यू कैन बी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। पर्टिकुलर बीपीएल के लिए नहीं है, पर्टिकुलर किसी के लिए भी नहीं है, टारगेट ऑडियंस इज टोटल इंडियंस, ठीक है। एंड हु आर द लेंडर्स? द डायरेक्शंस गिवन टू बैंक्स, एमएफआईज, एनबीएफसीज। आप अगर बैंक में जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे मुद्रा लोन चाहिए, तो दे विल हेल्प यू। इन बैंक देयर विल बी volunteers for all these loans, so you can claim particular loan like mudra loan from any particular bank going there, ठीक है। एंड these are few facts related to, you can go through this। चलिए आगे देखते हैं। See, this is a statement taken from their site only, मुद्रा। ज़्यादातर मुद्रा में मुद्रा लोन्स को जो मॉनिटर करना या फिर ज़्यादा जो सुपरवाइज करने के लिए, तो एक तो मिनिस्ट्री है ही। एंड इवन सिडबी टेक्स ए स्ट्रॉन्ग रोल इन दिस मुद्रा लोन्स, ठीक है। सिडबी के बारे में आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड देयर इज़ अ पोर्टल फॉर दिस, उद्यमी मित्रा। उद्यमी मित्रा पोर्टल में आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, एंड यू कैन क्लेम एंड यू कैन सी व्हाट ऑल आर द अपॉर्चुनिटीज गिवन इन दी मुद्रा लोन्स, ठीक है। आप इससे ज़्यादा इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए। You know, they saying there are no agents or middlemen engaged in mudra for availing mudra loans. This is a major aim of the scheme। middleman की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। and you can see here this is a mudra logo, and mudra loan is extended for variety of purposes। किसी के भी आप काम आएगा in the creation of manufacturing, services, retail, agricultural, ये आप देख लीजिए बस, ज़्यादा नहीं है ये मुद्रा के बारे में, बस इतना ही है। एंड द हेड ऑफिस इज इन मुंबई, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट मुद्रा लोन्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट विल सी अबाउट अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। दिस हैज बीन गिवन इन द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट्स व्हाई यू नो सच थिंग्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये ज़्यादातर क्या है, फॉर रिसर्च एंड एक्सलेंस इज टू मेनली एनकरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं। and you know these things just keep in mind। and इसमें क्या है, for building innovative skills, 5441 अटल टिंकरिंग लैब्स sanctioned in schools का ध्यान रखिएगा, कॉलेजेस नहीं है, स्कूल्स में है। एंगेज फॉर अराउंड 60 लाख स्टूडेंट्स का ये इसमें फ़ायदा हो रहा है। एंड यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है, टॉप एकेडमिक्स मेंटर्स। ये लगभग मतलब पिछले 2 साल से ये अभी यूज़ में है ये,
Atal Innovation Mission. And this slide you can see, it is published on 1st January 2019, and इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था within 3 months. See, that's why I am saying, why transforming India, you have to go through, this site is the key to government. आप go through हो जाइए, and we have made all the important slides taken from the transforming India. आपको अलग सा करने की ज़रूरत नहीं है, but still if you want, if you have a good enough of time, then you can go to the site and you just check it out there. ठीक है. And see, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में इस साइट से ही देख लेते हैं. This is the site of Atal Innovation Mission. See the creative logo. This is a unique logo, I would say. And see, नीति आयोग का है ये. You can see. And अटल इनोवेशन मिशन ज़्यादातर ये भी क्या प्रमोट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, इनोवेशन इन द कंट्री. दीज आर द कीवर्ड्स. ज़्यादा डेप्थ समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए. एंड इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा. एंड इवन नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इट विल फोस्टर इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो. ठीक है. एंड इसमें 5 मेजर इनिशिएटिव्स, ये याद रखिए, मेंस के लिए बहुत काम आएगा. अटल टिंकरिंग लैब्स, this might be a question in your prelims, कभी भी आ सकता है, you never know. And solving mindset across schools in India. Atal incubation centers, world class startups, innovation के related. Atal New India challenges, mentoring India campaign, Atal Community Innovation Center, Arise. Arise is a program to stimulate innovation, research in the MSME industry. This can be a statement. They may ask you, arise किसके रिगार्डिंग है. ठीक है. सो दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू अटल इनोवेशन मिशन. आप इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये टिंकरिंग लैब्स के बारे में याद रखिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स और ये अराइज. दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड ऑन ए होल ऑल्सो दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर माइंड्स. ठीक है. आगे चलते. See, this is a question what I was referring in prelims 2019 में, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा. See how simple it is. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी मतलब कभी कभी धोखा दे देता है आपको. एग्जाम कंडीशन पे इवन आंसरिंग सच क्वेश्चन समटाइम्स यू विल बी कंफ्यूज्ड वेदर इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर स्किल डेवलपमेंट. आप कंफ्यूज हो जाएंगे. यू हैव टू नो द गवर्नमेंट साइट्स थरोली, परफेक्टली. आपको मतलब दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस वीडियोस, ताकि मतलब कोई रह ना जाए. एंड सच ए सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है ये. एंड दिस इज हाउ एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अर्न इन प्रीलिम्स. ऐसे मतलब आराम से नहीं मिलेगा. ठीक है. चलिए आगे आगे चलते हैं. एंड जैसे मैंने कहा था कि अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में, यू जस्ट कीप दिस इन माइंड. देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन दिस लैब्स. And 3,000 schools have been funded till date. And incubator centers के बारे में भी किया था, startups का. ठीक है. This is the picture logo टिंकरिंग लैब्स का. एंड चलिए अब आगे चलते हैं. दिस इज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट schemes of government of India in augmenting skill development. Keywords are skill development and vocational training. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मोदी जी हेल्प कर रहे हैं इन लोगों को, ये पिक्चर है. एंड स्किल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग सेंटर को एक सेटअप करेंगे. लॉट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन सेटअप टू इम्पार्ट स्किल्स टू स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड पीपल. ठीक है. इवन स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा, इवन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी काम आएगा. And here we can see PM कौशल विकास, कौशल केंद्रास. एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये टारगेट किया हुआ. एंड दे आर सेइंग दैट 1 crore यंगस्टर्स ट्रेंड एवरी ईयर. शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम्स, आई वुड से. 1 करोड़ पीपल को ट्रेन करना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. चलिए इसका बेसिक फीचर्स हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें. एक तो बेसिक इसमें है ये कि दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय National Skill Development Corporation, NSDC, and this is under the guidance of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. ये
मतलब देखिए, हर स्कीम का, हर गवर्नमेंट स्कीम का बहुत सारे चीज़ होता है। इफ़ यू गो टू द स्कीम डॉक्यूमेंट इट विल बी रनिंग इनटू पेजेस, बट यू नो सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द स्कीम, एम्स ऑफ द स्कीम, नोडल डिपार्टमेंट एंड बेनिफिशियरीज। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि इट्स हाईली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। एटलीस्ट मेजर थिंग्स आप फोकस करेंगे तो लगभग आपको समझ में आएगा कि क्या किस रिलेटेड ये लॉन्च किया है, गवर्नमेंट का सोच क्या है एंड बेनिफिशियरी कौन बेनिफिट कर रहा है इसमें। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कौशल विकास योजना। अब इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। It will enable large number of Indian youth to take up industry relevant skill training। यहाँ पे जो है थ्रू ट्रेनिंग सेंटर्स हमने जो देखा था, ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप करेंगे, and the training as assessment fee is completely paid by the government. This is the provision given by government under this scheme, and this is applicable to every candidate who is of Indian national, मतलब Indian citizens के लिए ये eligible है। and they are saying that unemployed youth के लिए भी है, college dropout के लिए भी होगा, and they should have a verifiable bank account and Aadhaar card या फिर voter ID, these things to mainly to spread the employment opportunities among the youth। यूथ ऑलरेडी स्ट्रेस्ड में है, एंड इसलिए ये स्कीम लेके आया था ये। एंड यहाँ पे भी आप एक दो पॉइंट देख सकते हैं। दीज पॉइंट्स आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दी कौशल विकास योजना का जो वेबसाइट है उसी से ही लिया था ये, जो की पॉइंट्स है हमने यहाँ पे डाला था। ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस scheme, there will be training according to the national skill qualification framework। Training centers shall also impart soft skills। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, ये सब देख लीजिए। प्रायर लर्निंग, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल का भी कंपोनेंट है इसमें। ठीक है, दीज आर द की वर्ड्स ऑफ द स्कीम। आई थिंक नथिंग मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस। ठीक है, अब आगे चलते। सी दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2018, and see how simple this question is actually, but एग्जाम कंडीशंस में आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस इन आवर ओल्डर वीडियोस, वही से लिया था ये। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे सेड दैट इट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज बिलोंग्स टू स्किल डेवलपमेंट, अभी हमने देखा था। एंड these two statements are directly taken from the website ऑफ कौशल विकास योजना, बस, और कहीं से भी नहीं लिया था। ठीक है, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि न्यूज़पेपर और मैगजीन से काफ़ी इफेक्टिव है गवर्नमेंट सोर्सेस। गवर्नमेंट सोर्सेस कोई भी चीज़ आप पढ़ लीजिए, आइदर इकोनॉमिक सर्वे या इंडिया ईयरबुक या फिर योजना या फिर कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट का डाटा जो भी आप लेते हैं, दैट इज़ मोर एंड मच इफेक्टिव, मच सिंपलर एंड कंपेयर टू ऑल अदर कोचिंग मटेरियल या फिर कोई भी मैगजीन से ये काफ़ी बेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है। दिस इज a slide showing all the important things uh, in relate to the children। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोदी जी का फोटो फिर से। एंड स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था टू encourage फॉरेन स्टूडेंट्स coming into higher education of India, but frankly speaking the education system in India needs to improve a lot। अब इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी अगर देखेंगे तो वी आर वेरी बिहाइंड, नॉट इवन अ सिंगल इंस्टीट्यूट इज इन टॉप 10। ठीक है, टॉप 10 छोड़ दीजिए, टॉप 50 में भी शायद नहीं है। ठीक है, एंड फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नो फ्यू टर्म्स वी कैन सी। बिग डाटा क्या है, बिग डाटा क्या है, यूपीएससी कंफ्यूजेस यू। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन, मतलब एक टर्म पूछ लेता है कि लोग कंफ्यूज होते जाएंगे कि बिग बिग डाटा होता क्या है। The options they give you, big data is related to rocket science, big data is related to exoplanets। ठीक है, एंड big data is related to computers। These things, such things, you have to go through it thoroughly। बाकी एआई के बारे में तो सबको पता है, बट बिग डाटा क्या है देखते हैं। एंड ये भी सेटअप किया था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया के बारे में विल सी, इट्स अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। ठीक है, एंड विल सी व्हाट इट इज स्पेशलाइज्ड इनटू। इसरो का ही ये कमर्शियल आर्म है। एंड हम देख लेते बिग डाटा के बारे में, ज़्यादा डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है,
but you just see the characteristics of big data are velocity, volume, and variety. ठीक है, we have taken this from one of the leading software companies. ठीक है, so this is all about मतलब big data ये है कि मतलब आजकल people are talking about terabytes. Earlier, data used to storing a data of around 1 GB used to be a huge thing. But now 1 GB मोबाइल पे भी है, 1 GB रैम, खाली रैम मोबाइल पे स्टोर हो रहा है. बट नाउ द डाटा साइज हैज बीन इंक्रीज्ड, लाइक बिग जेम्स, फेसबुक के ऊपर मतलब per day, just some millions of photographs are uploaded on Facebook. How to handle such data. This is all about big data. Big data is related to these things. Size, volume, it is in terabytes. Transactions, tables, जितने भी large सॉफ्टवेयर जेम्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, all these things they are handling big data effectively. Yeah, that's how you can see the how to handle a better business decisions. इसमें काम आएगा बिग डाटा के बारे में. ठीक है, बस इतना बेसिक्स यही है. ज़्यादा डेप्थ जाएंगे तो जा सकते हैं if you have time. And we have also talked about New Space India Limited. This is a, you can see this is a taken from the site itself. The Government of India company under Department of Space. ठीक है. Major contribution of NSIL is the production of PSLV. और PSLV के बारे में हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे अभी, because every year at least one question or two questions will be related to space. Satellites के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, and we'll see what can be done in PSLV, GSLV. But NSIL major, you can see it is a nodal agency carrying out PSLV production. So just go through these facts. PSLV के बारे में भी ये दिया हुआ है. ठीक है, these facts are also important because this is given on the government side. So this is third generation launch vehicle of India, and few things you can see. PSLV has made around 48 launches, 46 successful. It is the most successful launching vehicle of India. GSLV is new, and GSLV is bigger than PSLV. And ज़्यादातर the satellites are launched in low Earth orbit. PSLV का ज़्यादा टारगेट लो अर्थ ऑर्बिट का है. We'll see about orbits also, what all are the orbits in the satellite communication also. And PSLV successfully launched 2 spacecraft. Chandrayaan 1 PSLV के थ्रू ही लॉन्च हुआ था, एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट. ठीक है, ये दोनों जो है PSLV played a major role. Chandrayaan 1, Mars orbiter mission, and even in Astrostrat. Astrostrat is mainly is a space observatory, you can say, to observe the celestial bodies uh, which are present in the universe. ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिए कि NSIL क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. This is just like a Antrix corporation also. Antrix is also a commercial arm of ISRO. चलिए आगे चलते हैं. And here there is another program, Prime Minister Innovative Learning Program. जैसे अटल इनोवेशन मिशन हमने दिखा था, this is also another program ध्रुव के बारे में. This is also a similar program to enrich skills and knowledge. Classes के लिए around 60 students are chosen from the classes of 6 to 9 to 12, and they are guided by the industry experts. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ध्रुव. ध्रुव के बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर. ठीक है, ध्रुव के बारे में थोड़ा डिटेल्स भी हमने कलेक्ट किया था, वी सी अबाउट इट. एंड सी, दिस इज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड चिल्ड्रन एंड टू एनरिच देयर स्किल्स एंड नॉलेज. इट विल बी मॉनिटर्ड बाय रिनाउंड एक्सपर्ट्स. ये सब दिया हुआ है. 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स बैकग्राउंड विल बी सेलेक्टेड. टोटली 60 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, एंड दिस विल ब्रिज स्टूडेंट्स एंड एक्सपर्ट्स प्रोग्राम. सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई. IIT Delhi in association with Atal Innovation Mission NITI Aayog has taken intellectual scientific ownership of the program. ठीक है, this is important. This is important statement.
they might ask you ध्रुव प्रोग्राम कौन लॉन्च कर रहे हैं या फिर कौन कर रहा है. यू कैन से फॉर साइंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हमने देखा था 60 में से 30 तो साइंस के थे और 30 परफॉर्मिंग आर्ट्स के थे, और वही 30 साइंस स्टूडेंट्स को आईआईटी दिल्ली ने मतलब मॉनिटर कर रहा है, आईआईटी दिल्ली इन एसोसिएशन विद अटल इनोवेशन मिशन. ठीक है. एंड फॉर द 30 अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स का ऑल दीज थिंग्स, संगीत नाटक अकेडमी, एसपीआईसी, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज, all these people are in association with the performing arts students. So on a whole ध्रुव प्रोग्राम के बारे में आपको इतना पता होना बहुत ज़रूरी है. एंड this is also a small interesting fact for you. It is also said that why it is called ध्रुव. ध्रुव being an Indian name for the star, pole star का नाम है, इंडिया का which is the brightest star in the stellar constellation. तो इतना, this is an interesting fact, so we have quoted it. And this data is taken from the Dhruv portal itself. So कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, डाटा करेक्ट है या गलत है, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं. नो हार्म इन इट. चलिए आगे चलते हैं. एंड यू कैन सी फ्यू अमेंडमेंट्स पॉलिटी रिलेटेड आप देख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट ने लाया था. सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए ये लाया था. ठीक है. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत है. दिस मे बी अ पॉलिटी क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है. सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप ओनली बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग पोजीशंस में रिजर्वेशन ऑफ टीचिंग पोजीशन, इस पे फोकस किया था. SC ST सोशली बैकवर्ड क्लासेस को, वीकर सेक्शंस को, they are focused on this. ठीक है. These two bills, just remember these things. आगे चलते हैं. Now another program is STRIDE. STRIDE क्या होता है? Scheme for Transdisciplinary Research for India's Developing Economy. इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. This is also related to again students and research scholars, or you can say. And basically क्या होता है STRIDE में? They'll encourage the research culture in the country. मतलब कोई भी चीज़ में आप रिसर्च करने का encouragement देते हैं. We'll see, we have taken the direct slide from the UGC. This is handled by UGC and MHRD. तो इसमें ज़्यादातर की पॉइंट्स हम देख लेते हैं. It will strengthen the research culture, innovation in higher education institutions. It will give support to research projects, nationally important and globally significant projects को वो चुनते हैं, and they'll see which projects are more viable, more beneficial for the economy, and they'll fund those projects. And this would say these are the few important aspects of the scheme. It will build the multi-sectoral linkages, university, government, community और industry के बीच में एक bridge form हो जाएगा. And this will improve the global ranking of Indian higher education institutions. See, the global ranking of higher education institutions in India is very very poor, I would say. Lot smaller countries with a good infrastructure, good teaching facilities are much better performing than the Indian colleges. So this is an alarming thing for Indian government. तो ये स्ट्राइड का प्रोग्राम लॉन्च करना, अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च करना, ध्रुव प्रोग्राम लॉन्च करना, ये सब दिस विल एनकरेज द कल्चर ऑफ रिसर्च इन द कंट्री. सो दिस इज ऑल. एंड जैसे मैंने कहा था, स्ट्राइड इज मेनली एडमिनिस्ट्रेड बाय यूजीसी विच इज अंडर MHRD. ठीक है. नोडल मिनिस्ट्रीज, नोडल एजेंसीज, यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे चलते हैं. यस, सी दिस इज एन ओल्ड स्लाइड, बट फिर भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज 31 जुलाई 2018 का स्लाइड है. बट फिर भी यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट किया था. जय विज्ञान, ये एक साउथ एशिया का सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ISRO has set a world record. Just imagine, they have launched around 104 satellites in a single flight. And ये 104 satellites आपको थोड़ा गेस नहीं करना है, आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए. दिस इज लॉन्च बाय PSL, नॉट बाय GSL. ठीक है. देखिए इतने इतने देश से, कजक का भी एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, इसराइल का भी लॉन्च किया था, स्विट्जरलैंड का भी लॉन्च किया था एक सैटेलाइट, नेदरलैंड्स, US का 96 सैटेलाइट्स दे हैव लॉन्च्ड.
See how big it is. America came to India's help and they have launched 96 satellites of America. UAE का एक satellite. And IRNSS के बारे में deeply देखते we'll see detailedly these are the very important NAVIC or the basic terms of space communication we'll see. ठीक है, बस इतना याद रखिए. दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप एंड दिस इज ए 2018 आर्टिकल. डोंट गेट मतलब कैरी अवे विद दिस, बट स्टिल यू हैव टू, इसको समझने के लिए मैंने ये स्लाइड डाला था. विल सी अबाउट GSLV PSLV क्या क्या है. चलिए पहले हम ऑर्बिट्स को देख लेते हैं, कौन सा ऑर्बिट्स है. दिस विल बी एटलीस्ट 3 to 4 स्लाइड्स ऑन दिस. विल कवर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस कंप्लीटली. मतलब इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आई थिंक वी हैव पुट इट इन अ वेरी सिंपल टर्म्स. ज़्यादातर हमने कोशिश किया कि वी हैव टुक दी ऑथेंटिकेटेड डाटा ओनली. सो हम देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि ऑर्बिट्स कितने हैं. ऑर्बिट्स एक तो लो अर्थ ऑर्बिट है. इसका हाइट आप देख सकते हैं कि देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स. 160 से लेके 1000 किलोमीटर तक है. ज़्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसी पे होता है. 63% ऑफ द space related satellites are laid in this orbit only. देर से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये भी काफ़ी काम आता है. ठीक है, दिस इज अराउंड 600 to 800 किलोमीटर्स. इसका डायग्राम में दिखा देंगे, आपको समझ में आएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, सन सिंक्रोनस क्या है. अब ये है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट. आप इतना ध्यान रखिए. सी हियर वी कैन सी दिस इज जियो सिंक्रोनस. दिस इज एन इंक्लाइंड ऑर्बिट टू द इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेन मतलब आप इमेजिनरी प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि थ्रू कट्स थ्रू इक्वेटर. ठीक है. एंड सी जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यू कैन से, जियो अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं इसी को. एंड दिस इज ऑलमोस्ट इन लाइन विथ द इक्वेटोरियल प्लेन एंड दिस इज अराउंड 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स सर्किल. ये एग्जैक्ट डाटा यूपीएससी में एक बार पूछ लिया है, बट यू हैव टू नो दीज थिंग्स. दीज आर द बेसिक्स ऑफ एनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ठीक है, 4 तरह के ऑर्बिट आप ध्यान में रखिएगा. इसको थोड़ा डिटेलली देख लेते हैं. See, this is LEO, low Earth orbit, sorry, LEO, and these diagrams we have taken from European Space Agency site के ऊपर ही ये दिया था. So you can see this orbit is less than 1000 kilometers. अब ऐसे घूम रहे ये ऑर्बिट. ठीक है, you can see and you always know the inclination of Earth is a little bit tilted north to south pole. ठीक है, और उसके बाद देखते हैं सन सिंक्रोनस. ये ऑर्बिट इस तरह से होता है टू पोल टू पोल. या ये ऑर्बिट में और ये ऑर्बिट में थोड़ा फर्क यही है. दिस इज ऑल्सो अराउंड 600 to 800 किलोमीटर्स, बट दिस इज फ्रॉम द सैटेलाइट रिवॉल्व्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. इस तरह घूमती है सैटेलाइट. एंड ये ट्रांसफर ऑर्बिट, सी यू कैन सी दिस इज अ ट्रांसफर ऑर्बिट. दिस इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, you can see this transfer orbit generally used as a हेल्पिंग ऑर्बिट आप बता सकते हो. सैटेलाइट को पहले ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं और ट्रांसफर ऑर्बिट से दिस रेड सर्किल यू कैन से दिस इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. सो पहले एक्लिप्स में लॉन्च करेंगे सैटेलाइट को. उसके बाद फाइनली वो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और फिर यहाँ से ये सर्किल को कंप्लीट करेगा. इट enters into geostationary. Finally, this is geo earth orbit or geostationary orbit. यहाँ पे जो डाटा दिया है एग्जैक्ट डाटा, बट एज फार एज यूपीएससी और योर एग्जाम्स आर कंसर्न, जस्ट रिमेंबर इट इज 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एंड दिस इज एग्जैक्टली इन लाइन. दिस ऑर्बिट इज इन लाइन विथ द इक्वेटोरियल प्लेन. आप ये देख सकते हैं. ठीक है, दीज आर ऑल द ऑर्बिट्स यू कैन से. ठीक है, अब हम आते हैं कि लॉन्च पैड्स क्या क्या होते हैं. सैटेलाइट को तो हम लॉन्च करेंगे. अभी ऑर्बिट्स हमने देखा था. इस ऑर्बिट में आपको एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है और वो लॉन्च करने के लिए यहाँ पे जो देख रहे हो ये है रॉकेट है. दिस इज कॉल्ड PSLV एंड वी हैव 2 मेन रॉकेट्स. एक PSLV है, एक GSLV है. और जो सैटेलाइट है यहाँ पे रहता है
दिस पोर्शन मोस्टली हैज कैरीज द पेलोड, पेलोड को ही सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। द वेट ऑफ द पेलोड डिटरमिन्स, मतलब हर लॉन्च व्हीकल को एक कैपेसिटी होता है, पीएसएलवी कितना पेलोड को कैरी कर सकती है, जीएसएलवी को कितना पेलोड कैरी कर सकते हैं। समटाइम्स यूपीएससी फोकसेस ऑन द स्टेजेस ऑफ द रॉकेट, या फिर इसका जो फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जीएसएलवी, ये भी पूछती है। एंड हमने ये दिया था, यू नो दीज, ये चार जो ट्यूब्स की तरह आप दिख रहा है, ये दीज आर कॉल्ड द बूस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया था, एंड वी हैव टेकन द डायग्राम और द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द इसरो साइट, ठीक है। सो दीज आर द बूस्टर्स, फोर यूनिक बूस्टर्स विच गिव्स एनर्जी टू द रॉकेट, ठीक है। उसके बाद दिस इज द PS1, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में सॉलिड रॉकेट, सॉलिड स्टेज कहा जाता है, सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं यहाँ पे। एंड ऑन ए होल यू कैन से PSLV इज ए 4 स्टेज रॉकेट, ठीक है। यू नो ऑल दीज आर स्टेजेस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक फर्स्ट स्टेज मान सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सेकंड स्टेज है, यहाँ से यहाँ तक थर्ड स्टेज है, यू नो। एंड फाइनली पेलोड विल बी हियर इन दिस पार्ट, द टॉप पार्ट इज पेलोड, या फिर आप सैटेलाइट बोल सकते हो, यू नो। once the rocket takes launch, all these, you know, strap on boosters, ये stages सारे मतलब निकलते रहेंगे। Just see the animation of rocket, you will come to know. But as far as the exam is concerned, you have to remember a few facts. PSLV uh, is a stage 4 स्टेज रॉकेट, alternate stages में फर्स्ट स्टेज में सॉलिड, सेकंड स्टेज में लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड, ठीक है। दिस इज द PSLV रॉकेट फॉर यू। एंड ज़्यादातर PSLV अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। एंड यू कैन सी द लास्ट फ्रॉम, यू नो, 2016 से लेके दिसंबर 2019 तक PSLV में क्या क्या लॉन्च किया था, वी कैन सी। एंड द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन हियर, रिसर्च, दिस डाटा इज टेकन फ्रॉम इसरो अगेन। कार्टोसैट लिया था, कार्टोसैट मेनली किस लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। यू कैन सी द एप्लीकेशन ऑल्सो। एंड किस ऑर्बिट में लॉन्च किया था ये भी दिया था, दे हैव लॉन्च्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट, दिस इज लॉन्च्ड इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, यू नो। रीसैट अगेन इट इज लॉन्च्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। एंड हाइसिस, हाइसिस आप देख सकते हो, and this is also launched in this is launched in sun synchronous, this is also for earth observation। and you know this cartosat, earth observation, disaster management system, earth observation। ज़्यादातर आप समझ रहे हो ना कि PSLV क्या है, मतलब PSLV मोस्टली the main focus is to observe the earth, and the satellites are launched in low earth orbits or sun synchronous polar orbits। आप देख सकते हो पिछले जितने भी PSLV का मिशन हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट PSLV। बट इसमें एक वेरिएंट्स भी आया हुआ, ऐसा नहीं है कि PSLV बाकी ऑर्बिट्स में लॉन्च नहीं कर पाएंगे, no। Chandrayaan 1 mission, it is launched by PSLV, which is much bigger than, you know, Chandrayaan is one of the biggest missions of PSLV, I would say। So Chandrayaan में लगभग तकरीबन, यू नो, मून इज अराउंड 3,80,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, तो इतना दूर तक भी PSLV को लेके गया था, वहाँ पे लॉन्च किया था। सो it's not that, but generally you can see mostly they'll launch the earth observation satellites related to climate environment, satellites related to climate and environment। यहाँ पे satellites का नाम दिया हुआ है, एंड यहाँ पे मिशन का नाम इतना इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ऑर्बिट्स आप ध्यान रखें, ज़्यादातर लो अर्थ ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस में लॉन्च। एंड वी हैव मेड स्मॉल डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GSLV देख लेते हैं। PSLV में ज़्यादातर हमने जो देखा था, PSLV होल्डर ऑफ द टू, बहुत पहले ही देखा था। एंड यहाँ पे ऑर्बिट्स के बाद भी हमने किया था। PSLV 4 स्टेजेस, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड alternate stages, solid and liquid fuels, mainly earth observation and remote sensing। बट 4-5 पॉइंट अगर PSLV के बारे में आपको लिखना है, ये 4-5 पॉइंट है। एंड GSLV इज ए एडवांस्ड वर्जन ऑफ रॉकेट, ये देख सकते हैं, ये GSLV का पिक्चर है। एंड इट कैन कैरी around more than 2.5 tons of payload,
इट मीन इट मतलब हेवियर सैटेलाइट्स को ये लॉन्च कर सकती है। एंड द यूनिक फीचर ऑफ PSLV इज क्रायोजेनिक स्टेज। इट इज जस्ट 3 स्टेज। मतलब ये मत समझिए कि GSLV इज एडवांस, इट कैरीज ए लॉट ऑफ वेट, तो इसका स्टेजेस बढ़ जाएगा। नो नो, इट इज 3 स्टेजेस, बट ओनली unique fact is it uses the cryogenic fuel in third stage. That gives a lot of power to the rocket, ठीक है। एंड ज़्यादातर ये रॉकेट जो है बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। एंड इट विल लॉन्च सैटेलाइट्स इन जियो ट्रांसफर ऑर्बिट और जियो अर्थ ऑर्बिट। हमने जो देखा था ऑर्बिट्स विच इज़ एट 36,000 किलोमीटर्स तक ये लेके जाएगी। सो ऑन ए होल आई वुड से दिस इज ए मोर पावरफुल रॉकेट, ठीक है। इसको कैपेबिलिटी, इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू PSLV, ठीक है। आप इतना याद रखिए, ये ज़्यादातर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। लाइक वी हैव सीन इन PSLV इज लॉन्चिंग ओनली अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग। एंड ज़्यादातर मेन फीचर्स जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का ही फीचर्स होता है। यूसेजेस बहुत ज़्यादा होता है। राइट नाउ व्हाट वी आर यूजिंग द टेलीविजन, रेडियो, जितने भी यूसेज है सैटेलाइट का यूसेज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। सो ज़्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय GSLV, इतने आप याद रखिए, ध्यान में रखिए। एंड हमने एक देखना है कि इनसैट के बारे में यहाँ पे एग्जैक्ट स्लाइड लिया था UPSC सॉरी इसरो की साइड से। यू कैन सी दिस इज ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं these satellites are placed in either in geostationary orbit or geosynchronous orbits। तो ये सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, दिस विल बी ऑब्जर्विंग, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि these satellites will be observing the Indian subcontinent and its neighbors also। You know, terrestrial way पे observe करना, it's a very difficult, that's why, you know, satellites come into picture। You know, all these things they'll start observing। And you can say this is a 9 operational communication satellites placed in geostationary orbit। This was established in 83। and INSAT का जो सिस्टम है 3A 3C, ये सब इतना ज़रूरत नहीं है। एंड ये भी आप देख सकते हैं कि you to get a general idea I have given this 200 transponders in C band, Ku band, ये सब बताते हैं। This is not that specific, but you can say INSAT on a whole, you can say this is a most important point। It is a operational communication satellites। Around 9 satellites are placed in geostationary orbit, ठीक है। Next important things of ISRO, you can say this Gagan and IRNSS, NAVIC. Both are very prestigious things of ISRO. You can see. First, we'll focus on Gagan. Gagan is mainly related to air traffic management, mainly to navigate and to provide the navigation-based services। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। And you can say this is in association with ISRO and Airports Authority of India, ठीक है। तो आप इतना समझना चाहिए कि इन डेप्थ जाने से अच्छा है कि सबसे बेटर, यू नो, कैच वर्ड्स, दिस इज ए सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये सब तो ठीक है, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया combinedly they are in this system, and they have developed GPS aided geo augmented navigation। गगन का फुल फॉर्म ये है। And this is available through GSAT 8 and GSAT 10। We have seen the communication satellites। GSAT कौन लॉन्च करता है? GSLV लॉन्च करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गगन। अब हम IRNSS के बारे में देखते हैं। दिस इज ए रीजनल, यू कैन सी IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो मेनली टू फोकस ऑन द इंडियन रीजन एंड इट्स नाइबरहुड। आप ये देख सकते हैं नेविगेशन, एग्जैक्ट वर्ड्स में पढ़ता हूँ यहाँ पे, रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन, टाइमिंग सर्विसेज ओवर इंडिया एंड इट्स नाइबर्स। बट ये नाइबरहुड भी स्पेसिफिकली डिटरमिन नहीं किया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। नाइबर्स मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं है, द क्लोज नाइबर्स टू इंडिया। एंड बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, SPS स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस एंड रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। एंड
थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे ये है कि IRNSS इज मतलब इज a total of 9 satellites. This is taken directly from ISRO. ठीक है, earlier it was 7, now they are saying it has 9 satellites in the series and out of which 8 are operational. Earlier 7 operational थे, now 8 were operational currently in the orbit, and you can see 8 में से 3 of them are in geostationary orbit and rest are in geosynchronous orbits. यहाँ पे clearly दिया हुआ है. Just remember, and NAVIC का full form, this is also called as NAVIC, Navigation with Indian Constellation. So this is not a single satellite, this is a constellation of satellites, this is a system of satellites. Around 9 satellites इस series में है, 8 already orbits में है, the 9th one will come into the orbit also. So 8 satellites में से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और बाकी 5 सैटेलाइट जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में है. One satellite is added recently. So this is the latest data given on ISRO portal. ISRO website से लिया था. So this is all about गगन and IRNSS. इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. So देखते हैं, आगे देखते हैं. इसके बेसिस एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2018 में. एग्जैक्ट क्वेश्चंस, you know, these questions exactly taken from the site website. इसीलिए I always stress that rather than reading the current affairs magazines, you just focus on the government websites. They are very very important and you can see the material, you know, exact lines. यहाँ पे पूछा था IRNS उस टाइम पे 7 सैटेलाइट्स का कंस्टलेशन थे. नाउ दे हैव एडेड द 8th one. So prelims 2018, this is a older one we can say. So they have asked that IRNSS has 3 satellites in geostationary, 4 satellites in geosynchronous. अब ठीक है, अब आप ध्यान में रखिए, अभी geosynchronous में 4 नहीं है, 5 है. ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए. और see, the second statement is absolutely wrong. It is saying entire India and about 5,500 square kilometers. Logically भी आपको लगना चाहिए this is a wrong statement. ठीक है. And India will have its own satellite navigation system with full global coverage. Full global coverage is very difficult. Full global coverage के लिए बहुत सारे satellites का constellation चाहिए. Right now, the IRNS satellite, you know, this constellation NAVIC का, it covers only India and its neighbors. That's all. Full global coverage, though, it's a dream actually. We can say it's very difficult. It's not that easy. ठीक है. So we'll see about मतलब early later developments हो सकता है. We'll see about that. So, but I want to say, you know, the UPSC questions are directly asked from the websites, and Transforming India site helps you in reading all these things. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Few aspects of GSLV also have been taken. This is also taken from the ISRO site only. And यहाँ पे आप देख सकते हैं 2001 से लेके 2018 तक GSLV जितने भी लॉन्च किया था सब इंफॉर्मेशन है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं MK2, दिस इज सेकेंड फेज. एंड ये ज़्यादातर ऑर्बिट्स आप देख सकते हैं. दिस इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, दिस इज ट्रांसफर ऑर्बिट. ज़्यादातर सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च करती है दिस व्हीकल. एंड पेलोड आप देख सकते हैं GSAT-7, GSAT-6, these are all communication satellites. ठीक है. And we have seen about PSLV, they were Earth observation satellites. These are communication satellites. ठीक है. And you can see, you know, few missions were unsuccessful also. यहाँ पे मिशन फेल हुआ था. This was a failure. This was a failure. GSLV had a lot of failures. ठीक है. PSLV is much more successful than GSLV, you can say. Now, see, this is the most advanced version of GSLV. This is GSLV MK3. This is the advanced version, we can say. And the payload to transfer orbit 4000 kg का payload ये carry कर सकती है. This is the most important capability of a rocket. ठीक है. 4 ton का satellites जितने भी है, they can place in geosynchronous and transfer orbits. And low Earth orbit में even it can transfer up to 8000 kg. These specifications are exactly given in ISRO. ठीक है. लो अर्थ ऑर्बिट में भी GSLV यूज कर सकती है एंड इट कैन लॉन्च अप टू 8 tons of satellite weight.
एंड ये MK3 ने जो भी लॉन्च किया था, वी कैन सी चंद्रयान 2 मिशन वाज लॉन्च्ड, ठीक है, एंड यू कैन सी GSAT 19, ठीक है, this was started in 2014 only. All these things just you can have a glance. ये थोड़ा पुराना information है, but this is also related to GSLV Mark 3. This was the first time GSAT 29 was the heaviest satellite to be launched. ये उसमें दिया हुआ था, ठीक है, so you just remember. And this satellite will increase high speed communication facilities in the northeast and far flung areas. You know, few statements you have to understand. आप सैटेलाइट्स के जो एप्लीकेशंस है या फिर उनका जो यूजेस है यही से मिल जाता है आपको. इट इज़ यूज्ड इन हाई स्पीड फैसिलिटीज ऑल्सो. आगे चलते हैं. दिस इज ऑल्सो हैवीएस्ट सैटेलाइट GSAT 11. एंड ये किसके रिगार्डिंग है? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज के भारत नेट प्रोजेक्ट को बूस्ट करेगी ये, ठीक है. सो यू जस्ट इमेजिन द व्हाट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नथिंग. टुडे टेक्नोलॉजी इज कंप्लीटली in the hands of communication, ठीक है. So the GSLV, the role of GSLV, you can see how big it is. HISIS satellite हमने देखा था, ठीक है. You just these are the pictures just to make you aware of the things with ISRO. and ये एक स्टूडेंट मेड सैटेलाइट है, कलम सैट को भी लॉन्च किया था. दिस वाज द इंडियाज फर्स्ट स्टूडेंट मेड सैटेलाइट. इतना याद रखिए, दिस वाज द वर्ल्ड्स lightest 3D printed satellite, ठीक है, and it weighs around 1.2 kg, very light weight, we can say. 2.5 किलो का है, 1.5 किलो का है, 1.5 किलो से भी कम. and this imaging satellite for military use, high production photo of earth surface, इसका applications है. चलिए, these are all the slides which make you to understand what the satellites are, what ISRO can do, what we are doing, you know, these things. एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है. समटाइम्स क्वेश्चंस मे नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक्स. इट कम्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये सॉल्व होना चाहिए. एंड द फ्यूचर मिशंस वी कैन सी वीनस पे भी लॉन्च करने का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. बाय 2023 दे आर प्लानिंग टू लॉन्च वीनस मिशन, टोपोग्राफी और वीनस स्टडी करने के लिए. एंड चंद्रयान 2 हमने देखा था, डिटेलली बात करते हैं, इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल आल्सो, ठीक है. एंड गगनयान के बारे में विल टेक अप इन अ सेपरेट स्लाइड, ठीक है. दिस वाज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन. अच्छा, हमने एक बात बताया था, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, मैंने इतना ऑर्बिट्स बताया था, कहाँ पे हो सकता है आप गेस कर सकते हैं? वो एक्चुअली लो अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है. इट इज़ अराउंड 400 to 500 किलोमीटर रेंज में है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. एंड वहीं पे जो ह्यूमंस जाके आते रहते हैं. सो इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट इनटू पिक्चर आल्सो. मतलब प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कहाँ पे है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहीं दूसरे प्लैनेट में नहीं है, ठीक है. यू हैव टू नो एटलीस्ट दीज थिंग्स, ठीक है. देयर इज अनदर सोलार मिशन आदित्य L1. इट्स मेनली टू लॉन्च इन 2020, बट देखते हैं कि लॉन्च किया कि नहीं किया ड्यू टू द कोरोना pandemic. We'll see. The main aim of this solar mission is to study the sun's cornea and its impacts on climate changes. सन का कॉर्निया का इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे बहुत पड़ता है, एंड उसको स्टडी करने के लिए ये मिशन को लॉन्च कर रहे हैं. These are also few slides about ISRO and GSLV, PSLV related, space related things. इसमें आप ये देख सकते हैं कि the Cartosat has been launched in sun synchronous orbit, ठीक है. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू सी दी ऊपर ऊपर से देख सकते हैं. You know, Cartosat 3 is the most advanced Earth observation satellite. It was launched by PSLV, and you can see the Cartosat 3 का applications जो है large scale urban planning में help कर देगी. कोस्टल एंड लैंड यूज प्लान, लैंड कवर को असेस करने में. देखिए, ये एप्लीकेशंस डायरेक्टली पूछ लेता है यूपीएससी. दे विल से, यू नो, सैटेलाइट्स क्या क्या
हेल्प आता है इंडिया के लिए, क्या मतलब किस लिए लॉन्च कर रहे हैं, यू नो दीज एप्लीकेशंस डायरेक्टली यही से पिक होता है। जस्ट रिमेंबर, यू नो लैंड यूज पैटर्न को असेस करने में, कोस्टल लैंड यूज पैटर्न को असेस करने में, लैंड कवर, ट्री कवर, यू नो दीज स्टेटमेंट्स वर आस्क्ड डायरेक्टली इन प्रीलिम्स। सो ट्री कवर को भी असेस कर सकती है, लैंड कवर को भी असेस कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड दिस इज आल्सो डिफरेंट सैटेलाइट्स, यू नो रीसैट के बारे में दिया था, 9 फॉरेन सैटेलाइट्स, you know PSLV started launching foreign satellites also. ठीक है, indigenous reset was indigenous satellite, it is mainly for surveillance। ठीक है, और इसमें efficient monitoring of forestry, agriculture, disaster management, ठीक है, ये सारे applications these are very very important for your exam। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, कभी कभी पूछ सकती है। एंड ये देख सकते हैं, दिस इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। एंड नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट में भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट यू कैन जस्ट सी फ्यू थिंग्स। DTH services, connectivity to VSATs for ATM, teleport services, e-governance applications, you know all these things are the applications of communication satellites। Just remember these things, these are you know key points for your mains। आगे बढ़ते हैं। few other aspects also will cover। कुछ चीज़ें ये दिया था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के सेट में कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग्स में हम लोग अभी 44th रैंक पे है। एंड जस्ट रिमेंबर, दिस इज नॉट ए रेगुलर थिंग। कॉम्पिटिटिव रैंकिंग्स कौन डिक्लेयर करता है? ना वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर करता है, ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दिस इज लॉन्च्ड बाय IMD वर्ल्ड रैंकिंग्स, एक स्विस बेस्ड इंस्टीट्यूट है। दिस इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट वी कैन से। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट स्टिल यू नो these rankings are very much important for the digital world। you know these world digital field mein these rankings matter a lot। So now it is saying, government is saying that we have climbed the rank to 44। इसमें सब फैक्टर्स ये देखते हैं कि we have ranked first in investment in telecommunications। दी लास्ट टाइम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सब कैटेगरीज पूछा था, सो ध्यान में रखिए इसको। R&D प्रोडक्टिविटी बाय पब्लिकेशन, ग्रेजुएट, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन साइंसेस, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी रैंकिंग्स में। ठीक है, थोड़ा बहुत जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट्स है गवर्नमेंट जो बता रहे हैं उनको देख लेते, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। आइस डैश अतिथि ऐप देखते। आइस डैश क्या है? मेनली टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। कस्टम्स, ज़्यादातर ये कस्टम्स वाले जो एयरपोर्ट्स में जो क्लियरेंस के लिए तकलीफ उठाता है, दीज एप्स आर लॉन्च्ड मेनली टू facilitate hassle-free, faster clearance by the customs at airports। Passengers can file direct declaration, ठीक है, Indian customs के साथ। This is all about Atithi app। And coming to Ice Dash, both are launched for customs only, Indian customs। ये आप देख सकते हैं, this is to promote ease of doing business। And this is a interactive, there is an interactive dashboard, and there is a comparison from time to time, import of cargo clearances and various airports के बाद। you know these two apps is related to customs के लिए है। just keep in mind these things। you know these keywords sometimes are asked directly। ice dash किसके related है, अतिथि ऐप किसके related है। so हमने ये डाला था वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या है। डिजी लॉकर के बारे में हमने अलग सा देखेंगे डिजी लॉकर क्या है, बट यू नो गवर्नमेंट इज स्ट्रेसिंग लॉट, RBI इज स्ट्रेसिंग लॉट। ठीक है, एंड नाउ यू नो RBI इज रिकॉग्नाइजिंग डिजी लॉकर फॉर KYC प्रोसेस ऑल्सो। डिजी लॉकर के बारे में एक अलग सा बना देंगे अगले वीडियो में। नाउ फॉर टाइम बीइंग जस्ट सी दीज फैक्ट्स। बैंक्स आर नाउ अलाउड टू यूज वीडियो KYC। एंड जियो टैगिंग के बारे में भी हम देखेंगे, जियो टैगिंग क्या होता है। एंड customer acquisition and ease customer service process, we can see। just go through these facts, these are not that significant, but हम एक डिजी लॉकर के ऊपर और जियो टैगिंग के ऊपर विल मेक ए सेपरेट स्लाइड्स। एंड डिजिटल सर्विसेज में ये देख सकते हैं जीवन प्रमाण,
ये किसके रिगार्डिंग है? ये ज़्यादातर ये पेंशनर्स के लिए है, ठीक है। आप एक फैक्ट ये देख सकते हैं कि नो नीड फॉर द पेंशनर टू बी प्रेजेंट इन पर्सन, यू कैन सी डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सिग्नेचर्स, ये देख सकते हैं। और डिजिटल सर्विसेज, उमंग ऐप, देर आर मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज बेस्ड ऑन दिस ऐप। यहाँ पे एक फोटो डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। सो उमंग ऐप भी, मतलब ये सारी चीज़ जो है ना, आप एक मेंस में अगर क्वेश्चन आएंगे तो दीज थिंग्स विल कम इनटू प्ले। एंड लास्टली भारत नेट के बारे में देखते, ठीक है। भारत नेटवर्क, you know what it is actually, you know, this comes under digital India, ठीक है। इट इज कनेक्टिंग रूरल इंडिया, एंड इसमें यह है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत आर कनेक्टेड बाय ऑप्टिकल फाइबर नेट। दिस इज द मोस्ट की पॉइंट ऑफ द भारत नेट, ठीक है। और इसमें ये डाटा भी दिया हुआ है, अराउंड 2,78,000 किलोमीटर have been laid, ऑप्टिकल फाइबर्स ले किया है, एंड अराउंड 1.16 ग्राम पंचायत आर कनेक्टेड। सो दिस डाटा विल बी अपडेटेड, बट इतना आप समझ लीजिए भारत में किसके रिगार्डिंग है ये, ना। This concludes the skill development and the science related aspects, but few things will be covered in the later videos also. I would say government schemes should be understood, should be studied in a proper way, so that you know current affairs are done from this. Apart from this, you can do newspapers, PIB, बहुत सारे materials है, but basics, these are the basics, these are sometimes questions are directly asked from this, like जैसे हमने देखा था, and there are a lot of questions also. And the upcoming series, we are yet to cover infrastructure, we are yet to cover the international relations. We'll be coming up with 2 more videos, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के साइड जितने भी है माइंड गवर्नमेंट का, ये हम कवर कर लेंगे, 2 और वीडियो आ जाएंगे इसमें। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर व्यूइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड थैंक्स फॉर पेशेंस, थैंक यू, keep reading, happy reading, maintain your health.